the topic Evolving Startups in the Age of Digitalization. Mr. Saurabh Jain is a business magnate, passionate entrepreneur, charter member of TIE, and a software developer. As a software developer, he has been awarded the various titles such as BlackBerry Elite, Nokia Developer Champion, and Mr. Saurabh has also been a speaker at various places and events like BlackBerry Jam, major startup events, SXSW, programs by NASCOM, FICCI, as well as various IITs and IIMs. Also at SRCC, Symbiosis University, NMIMS, and of course, Amity University, and other esteemed institutions across India. Mr. Jain has completed his education from Modern School New Delhi and ARSD College Delhi University. He started his professional journey with SKJ Technologies Delhi. He was also the founder at Open Class, co-founder at Skidos, followed by being the business mentor at Delhi Press. He has also been the ex-vice president of Paytm Noida and is currently the founder of Fun to Do Labs, which is also in New Delhi. Sir, thank you for accepting our invitation. It is truly an honor to have you with us at Amity School of Business. I, on behalf of the whole ECEL Impresario family and Amity School of Business, welcome you to our institution. We are looking forward to an amazing session with you, sir. Over to you. With sharing permission, I want to share the slides. I will start with who is an entrepreneur. An entrepreneur is someone who can do more than what is thought possible for less than what is thought possible. So this definition was given by John Doerr. John Doerr is a legendary investor who was one of the earliest investors in Amazon and Google. So you can see his stature. He invested more than 20 years ago in both Amazon and Google. And he coined this very simple definition. Entrepreneur is somebody who can do more than what is thought possible for less than what is thought possible. The good thing is that when you see this definition, it basically means that a person who does 1 plus 1, 2 is a businessman, and somebody who does 1 plus 1, 11 is a entrepreneur. So that is the definition of entrepreneur. This is a very simple definition given by Eric Ries of bigger size. For example, Paytm, when I joined Paytm, so there is a lady who was one of the earliest employees in Paytm. She said, "Kya hum aaj bhi startup hain?" People refer to us as startup, and but I perceive that now we have 10,000 plus people. So I said, startup में employees कितने हैं उससे that is not important. What is important is how many like are you building a product or a service under uncertainty. So ideally, if you see any startup, they are building a new product generally, and that's why there is a uncertainty. So if you see Paytm, so 5 years ago Paytm introduced QR code, 5.5 years ago, and if you see the whole brand, everything is very relatively new. But if you see any old business like Asian Paints, so there the demand curve is the same which was happening in say 1970s. So in 1970s the same demand curve was there. In monsoons we had less demand. Today also in monsoons we have less demand. In near Diwali there was more demand for paint. Now also there is more demand for paint near Diwali. So then we come to 3 goals of a startup. So when I was of your age, I was a big fan of Bill Gates. Like I hope most of you must be big fans of Elon Musk these days. Elon Musk has that stature that Bill Gates had in 2001. So I always thought I should have a portfolio of products like Microsoft, a culture to die for. An IPO will come, I will become a billionaire or a millionaire at least. So that was that thought process. I think many of the young startups or young founders have this thought process. Unfortunately, I didn't know how to go there. And after 10, 15 years of hard, like understanding everything and hard experiences, I started reading a lot of books. I have read, I have read more than 208 books in last 6 years. I also was reporting to Mr. Vijay Shekhar Sharma, founder of Paytm, and I also had the like like I was able to talk to a lot of senior people in Paytm as well as senior people in the industry. So what I realized was that you need to focus on just 3 things as an entrepreneur: product, people, purchasing power. People come to your company for a good product. Good product is only built by good people, and good people need obviously good purchasing power. So as a startup founder, focus on just these 3 things. Don't focus on hundreds of things. And these obviously gel with my dream. Unfortunately, at that time, I didn't know how to make that a reality. Now I know how to make that a reality. That's why I
Last month, I started my own startup. I left Paytm last month and I started my own startup. So there are three stages in a startup's life cycle: search, build, scale. Search is basically knowing what to build. You try to find what to build. In building, obviously, you are building it. And finally, in scaling, you want to scale it. So generally, what happens when you talk to any person, they say कि economic times में मैंने देखा था, money control पे देखा था. They generally, economic times, money control, CNBC, they generally cover scaled startups, या startups who are in the scaling phase, because they find scaling, funding, everything very glamorous. Media generally wants to focus on that because obviously people find that glamorous. But the real hard work is in search and build. Uh, and these are the two stages generally where media doesn't cover. Sometimes they do cover. For example, I did search before joining Paytm. Then even during Paytm, this idea resonated with me, what I'm doing in Fun to Do Labs. Then when I started this Fun to Do Labs, left Paytm, I was not expecting media to cover me, but because I had a profile, media covered me. Some famous online digital media people covered me, and even in the build phase, the company got publicity. But generally, as a student, if you will start, you will get publicity only during scaling phase. So I generally recommend people to read all those 208 books. Unfortunately, I know most 99.9% people would not read that. So I created this slide, which you can say after at least out of those 208 books, at least out of, like, if you try to summarize those 100, at least 100 books related to startups and other best practices, this is the total gyan of of those 100 books. So focus on three stages: search, build, scale. Three focus areas: product, people, purchasing power. So 9 total steps. So 3 steps in product, 3 steps in people, 3 steps in purchasing power. So I say 3 steps, basically product, people, purchasing power, and these product, people, purchasing power have 3 sub steps. If you want to be a startup founder, just try to learn these 9 things. If you know these 9 areas, then you can become a successful founder. So start with problem, solution, fit. Start with a problem. Startups start with a problem, that they don't start with funding, they don't start with idea, they start with a problem. ये problem है, ये कैसे solve करनी है. Then they focus on solution of that problem. Once they have the idea of the solution, they start building a product. When their product is ready, they even before having 100% good product, just when the minimum viable product is ready, they go to the market. And in market, if the market likes the product, then it is called product market fit. Product market fit means that now venture capitalists can fund you. Once you have money from venture capitalists, you can invest money for growth, and finally you will have profit because you will have economies of scale after a certain point of time. So this is the general life cycle of product of a startup. Then we come to people. So people में आते हैं, तो finding founders, finding core team, building corporation. These are the 3 steps within people. So finding founders, obviously you have to start with the founders. So 1 or 2. So generally the idea starts with one founder, then he or she talks to the other people and make them co-founders. Generally people prefer to have relatives or friends as co-founders. And I have personally observed Vijay and एक बार he was sharing in some media कि he trusts people only after a certain time. So what I would say is कि don't make anybody co-founder. Try to have some knowledge about that person and only then make that person co-founder. Then second step is finding core team, because you need people to do only 1 or 2, 3 co-founders cannot do everything. And then finally, once you have product market fit, you need hundreds of people. Obviously, you need a corporate structure. Then coming to purchasing power, it's basically funding plus ways of saving money. So you start with bootstrapping. Nobody would fund you initially, so you have to bootstrap. Bootstrapping is an American term. Basically, it means आपको अपने जूते खुद ही बांधने हैं. तो इट्स बेसिकली कि आपको अपने पैसे खुद ही खर्चने हैं. Then second, angel investor. Once you have idea of the product and you have a minimum viable product, you can go to high net worth individuals. You can say, सर मैं ये बना रहा हूँ, आप मेरी कंपनी में 50 लाख लगा दो.
why you need angel investors? Because core team में 5 आदमी भी रखोगे, आप 50,000 रुपए महीना भी लेंगे तो 2.5 लाख रुपए महीना के हिसाब से they will be spending 30 lakh rupees per year. So 30 lakh rupees generally as a student, as a middle class person, generally you would not have. So you may have to go to angel investor. If your father has the money and he is ready to give you, so he becomes your angel investor practically. So then we go to venture capitalist once we have the product market fit, and we obviously start building the corporation. So now, because most of the audience is students, I would like to clarify certain things for you. So एक question जो students generally ask, so one of the most famous questions जो generally मतलब everybody is asking is which problem to choose. So I always say हिंदुस्तान में we are very blessed as a country कि we have millions of problems. तो आपको problem choose करने की problem नहीं है एटलीस्ट. अगर आप फिनलैंड में पैदा होते हैं where 95% people are happy, maybe there are no problems in the country, but here because we have so many problems, so there are obviously lot of ideas which you can use to solve the problem and create startups. So start with what you love, what you are good at. तो इसमें मैं I would like to share you some examples. Vijay Shekhar Sharma, why is so famous, और Elon Musk why is so famous. तो Elon Musk का example लेते हैं. So Elon Musk is doing what he loves. Obviously he loves this. He's good at it. He can be paid for. तो obviously उनको आप पे कर रहे हो तभी he is the second richest person. कभी कभी first richest भी बन जाते हैं. And what the world needs. So obviously world needs SpaceX, world need Tesla cars. World obviously needs that. तो किसी भी successful आदमी को देखोगे तो he or she is doing these 4 things. So I read this in a very famous book called Ikigai. बड़ी फेमस बुक है. तो ट्राई टू फाइंड योर पैशन, ट्राई टू फाइंड योर मिशन, ट्राई टू फाइंड योर प्रोफेशन, ट्राई टू फाइंड योर वोकेशन, और ये चारों जहां एक जगह मिलती है दैट इज योर इकिगाई. इफ यू आर एबल टू फाइंड दैट नोबडी कैन स्टॉप यू. तो मेरे साथ क्या हुआ, व्हाई आई लेफ्ट पेटीएम, तो व्हाट आई रियलाइज्ड इनिशियली व्हेन आई जॉइंड, आई हैड ऑल दिस 4 वर्किंग फॉर मी. देन slowly I began realizing कि I was doing certain things. Obviously I was loving certain things, I was not loving certain things in my job. I was good at certain things in my job, not good at certain things in my job. I was obviously getting paid because I was in Paytm, and world needed certain things, but certain parts of my job I realized maybe world doesn't need. It is more towards like a job I was doing things. So I realized I should do something where ये 4 चीजें मिल जाएगी. So I started. I had some ideas before Paytm related to education. I thought I should start a startup related to education. So I started Fun to Do Labs. तो उसमें हम थोड़ा अलग कर रहे हैं. We are doing transmedia education जो वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया. तो वर्ल्ड नीड्स दैट. Obviously जब हम एजुकेशन पे करेंगे तो everybody wants to pay for education. You are, I hope I am good at it. I personally believe I am good at it. I am loving it. तभी Paytm छोड़ के I started my own startup. Then we come to good solution. तो good solution is desirable, feasible and viable. अब इंडिया में क्या प्रॉब्लम आती है कि मेनी पीपल बिलीव कि इंजीनियर का काम इंजीनियरिंग करना है, दिस इज द थॉट प्रोसेस इन इंडिया. एंड जो मेरा रीजन है व्हाई आई एम टेकिंग ऑल दी सेशंस, वो यही है कि आपका एक ये थॉट प्रोसेस आई हैव टू ब्रेक. तो इंजीनियर का काम है चीजें बनाना, और एमबीए का काम चीजें बेचना है, बट वो बिकेगी तभी जब प्रोडक्ट अच्छा होगा. तो अगर आप आईफोन बेच रहे हो तो बेचना आसान है, उसकी जगह आप कुछ खराब चीज बेच रहे हो तो बेचना मुश्किल है. तो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल दीज 3 थिंग्स होलिस्टिकली, स्पेशली एज अ प्रोडक्ट पर्सन, एज एन एंटरप्रेन्योर. यू हैव टू मेक इट डिजायरेबल, वायबल, फिजिबल. आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों है. तो डिजायरेबल में आर्ट यूज होती है, वायबिलिटी में कॉमर्स होता है, फिजिबिलिटी साइंस. तो तीनों आनी चाहिए. अनफॉर्चुनेटली मोस्ट कॉलेजेस डोंट टीच ऑल 3. तो आई वुड से यू हैव टू डू लॉट ऑफ सेल्फ स्टडी. अगर आप सोचोगे कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई करनी है और उसके बाहर वर्क लाइफ बैलेंस बनाना है, तो वो होगा नहीं लाइफ में. तो ट्राई टू डू व्हाट यू लव. तो अगर आप जब करोगे तो वर्क लाइफ बैलेंस आपको ये बेकार आइडिया लगेगा. वर्क लाइफ बैलेंस उन्हीं लोगों के लिए होता है जो अपने वर्क में खुश नहीं होते. देन दे वांट अ वर्क लाइफ बैलेंस बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विद देयर वर्क. इफ यू आर हैप्पी विद योर वर्क देन यू वांट टू वर्क 15 आवर्स. आप उसको वर्क लाइफ बैलेंस क्यों बनाओगे, 8 घंटे क्यों काम करोगे अगर आप खुश हो अपने काम से. तो so that is the thing. So try to find a user who needs something. उस यूजर के लिए आप डिजायरेबल प्रोडक्ट बनाओ.
कस्टमर के लिए वायबल हो प्रोडक्ट। अब कस्टमर और यूजर अलग क्यों होते हैं? जैसे बायजूस का केस है, बच्चे यूजर हैं एंड पेरेंट्स आर कस्टमर, दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए प्रोडक्ट, एंड देन ऑब्वियसली फिजिबिलिटी होनी चाहिए। कमिंग टू मतलब वी डोंट हैव मच टाइम, तो मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आई एम कवरिंग। सो यू कैन नॉट क्रिएट अ प्रोडक्ट इन वन गो। यू स्टार्ट, जैसे नेचर स्टार्ट्स विद अ किड, फिर वो टीनेजर बनता है, फिर वो जवान होता है, तो जैसे यू आर इन द प्रोसेस ऑफ दैट। तो वही सेम चीज प्रोडक्ट के केस में होता है। यू स्टार्ट विद अ किड प्रोडक्ट, जिसको हम एमवीपी कहते हैं, then you have to build, measure, learn. There's Eric Ries in his book Lean Startup, he says build, measure, learn करो, and finally you get a product. ये मैं थोड़ा skip कर रहा हूँ because of lack of time. Product market fit is basically high demand, high retention, positive unit economics. जैसे Uber है, हाई डिमांड है, हाई रिटेंशन है, उबर की ऐप को डिलीट नहीं करता। मतलब 1 साल हो गया मैं उबर में पर्सनली नहीं गया बिकॉज ऑफ कोविड, बट उसके बाद भी मैंने उबर की ऐप डिलीट नहीं करी है। जोमैटो, हाई डिमांड, हाई रिटेंशन। जोमैटो कोविड हो रहा था फिर भी 2-4 बार इच्छा हो गई जोमैटो से सामान मंगा लो। मतलब आई वॉज नॉट ऑर्डरिंग लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज माई मदर वॉज लर्निंग थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब, एंड वो पूरा का पूरा बाजार वाली चीज़ें बना पा रही थी, बट फिर भी वो कभी कभार इच्छा हो जाती है। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट यही है। जूम के केस में 2020 में हुआ, पेटीएम के केस में 2016 में हुआ, हाई डिमांड हाई रिटेंशन हुई। पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट because if you don't have a positive unit economics, so just hold 1 minute, एक second. So positive unit economics बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू आर ब्लीडिंग इन एवरी ट्रांजेक्शन तो फिर वो प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं है, वो तो फिर आपकी कंपनी एक तरीके से सुसाइड कर रही है। इंजन्स ऑफ ग्रोथ क्या होते हैं? इफ यू सी एनी प्रोडक्ट यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, तो 3 ही तरीके हैं, स्टिकीनेस, वायरलिटी, पेड। स्टिकीनेस उबर वाला पेटीएम वाला मॉडल है कि आपने यूज किया और आपने ऐप डिलीट ही नहीं करी, तो ऑब्वियसली आपकी ऐप चलती रहेगी, और आप यूज करोगे तो फिर दूसरा भी यूज करना धीरे धीरे लगेगा। एक वायरलिटी होती है, व्हाट्सएप है, मैंने यूज किया, जैसे एक एग्जांपल, मेरे को सबसे पहले व्हाट्सएप किसने बताया? दिवाली थी आई थिंक 2011 की या 10 की, ध्यान नहीं मुझे। तो मेरी भाभी हैं, कजन भाभी, तो शी सेड सौरभ तुम डाउनलोड करो व्हाट्सएप, बड़ा अच्छा मैसेंजर है, एसएमएस की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आई डाउनलोडेड व्हाट्सएप, आई रियलाइज बड़ा अच्छी चीज़ है। अब आई डाउनलोडेड, तो आई टोल्ड 5 अदर पीपल टू डाउनलोड, मैंने अपनी मदर को बताया आप भी डाउनलोड करो, बड़ा अच्छा है। अब वो धीरे धीरे लोग यूज़ करते रहे। ऑब्वियसली इन 2021 नाउ वी डोंट रिमेंबर व्हाट्सएप कब यूज़ कर रहे थे, कैसे यूज़ कर रहे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्सएप वॉज वेरी वायरल। लाइन आया और काफ़ी सारे इंस्टेंट मैसेंजर्स आए, एक ने कतरीना कैफ ली, एक ने शायद रणवीर कपूर या कौन लिया था, वो सब लेने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट्सएप वन इन विदाउट एनी पब्लिसिटी बिकॉज ऑफ वायरलिटी। एंड पेड इंजन ऑफ ग्रोथ, जो बायजूस के केस में बड़ा क्लियर है, महंगा प्रोडक्ट बेचो, शाहरुख खान को लो और उसको क्योंकि वो 40,000 का प्रोडक्ट या 30,000 का प्रोडक्ट बेचते हैं, 2-4 हज़ार रुपये मार्केटिंग में लगाना या 2-4 हज़ार रुपये सेल्स में लगाना उनके लिए कुछ भी नहीं है एक प्रोडक्ट में। तो स्टिकीनेस, वायरलिटी, पेड, ये तीनों चीज़ें आपको अलग अलग भी मिलती हैं। पेटीएम के केस में तीनों है। क्रिकेट मैच स्पॉन्सर करते हैं, पेड इंजन ऑफ ग्रोथ कर रहे हैं। एक आदमी, मैं अपने किराने वाले को कहता हूँ मेरे को पेटीएम से पेमेंट करनी है, और इस वजह से किराना वाला पेटीएम का मर्चेंट बनता है, तो वायरलिटी है। स्टिकीनेस ऑब्वियसली है ही, क्योंकि मैं खुद पेटीएम यूज़ करता रहता हूँ रिचार्जेस वगैरह के लिए, तो वो स्टिकीनेस है। तो आई एम स्किपिंग अ फ्यू टॉपिक्स जो मैं जनरली लंबी वर्कशॉप में लेता हूँ, बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एज स्टूडेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एक अच्छे फाउंडर के गुण क्या होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा इंग्लिश में ज़्यादा बोलूँगा बिकॉज इसमें मैं जो थोड़े से तकिया कलाम वगैरह यूज़ करता हूँ वो थोड़े हिंदी में ज़्यादा मज़ेदार आते हैं सुनने में। तो आई वुड से हेड, हार्ट एंड हैंड, यू हैव टू फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स। तो आपको सामने वाले में या अपने अंदर ये देखना है हेड, हेड क्या है, मतलब अकल कितनी है, दिल कितना है, और हाथ में क्या है। तो हाथ में आए से एक्सपीरियंस मनी नेटवर्क, बेसिकली सरस्वती का आशीर्वाद है, लक्ष्मी का आशीर्वाद ला रहे हो या शक्ति का आशीर्वाद ला रहे हो। एक्सपीरियंस इज सरस्वती, मनी इज लक्ष्मी, नेटवर्क आजकल की दुनिया में शक्ति है, क्योंकि आजकल की दुनिया में वो पुराना वो स्पोर्ट्समैन वगैरह तो होते नहीं है। आज आज जितने लोगों को जानते हो इंडस्ट्री में या पॉलिटिकली, वही वही आपकी शक्ति है। तो फिर हार्ट पे आते हैं, मैं उल्टा चल रहा हूँ ऑर्डर में। हार्ट पे आते हैं, इंटीग्रिटी ऑब्वियसली इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ समबडी इज वेरी इंटेलिजेंट बट उसके अंदर इंटीग्रिटी नहीं है, तो ऐसे आदमी से तो और ज़्यादा डेंजर है। जबकि वो बेवकूफ़ है और इंटीग्रिटी नहीं है तो फिर भी गाड़ी चला सकते हो। तो एम्पथी, अब वाई विजय शेखर शर्मा ऑफ पेटीएम इज सक्सेसफुल, बिकॉज उनके अंदर एम्पथी है।
इस देश में वी हैव मोर देन 10 मिलियन इंजीनियर्स, बट व्हाई देयर आर वेरी फ्यू लाइक विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर हैं एंड ही इज अ ग्रेट इंजीनियर। तो ही हैज एम्पैथी। तो बड़े फ्यू इंजीनियर्स हैं जिनके अंदर एम्पैथी है, बिकॉज इंजीनियरिंग में और आईआईटी में एम्पैथी जाके नहीं सिखाते, ऑन दी कॉन्ट्ररी उल्टी एम्पैथी सिखाते हैं। वहाँ क्या होता है, अगर आप आईआईटी में चले जाओ या आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाओ तो यू हैव दिस, यार मैं तो बहुत होशियार हूँ, दूसरे बेवकूफ़ हैं। तो आप बल्कि एम्पैथी, जो नेचुरल एम्पैथी होती है ह्यूमन बीइंग में, कई बार वो भी खत्म हो जाती है आईआईटी जी क्लियर करने के बाद। तो व्हाट आई एम सेइंग इज आपको एम्पैथी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर सक्सेस ऑफ विजय। कि उनको एक रिक्शा वाला, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आई वेंट टू जयपुर, ही वेंट टू जयपुर एंड ही टोल्ड मी कि जयपुर में वो एक ढाबे में गए, ढाबे वाले से उन्होंने पूछा भैया आप पेटीएम यूज़ करते हो, एंड ढाबा वाला सेट सर नहीं पेटीएम यूज़ नहीं करता क्योंकि 3-4 प्रॉब्लम है ये। विजय केम बैक, उनकी सारी टीम आईआईटी आईएम वालों से भरी पड़ी है, बट ही सेड ये ढाबे वाले ने इनपुट दिया है, ये मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। तो दैट इज द रिस्पेक्ट ही गिव्स टू अ नॉर्मल पर्सन लाइक ढाबा वाला, रिक्शा वाला, बिकॉज वो कहते हैं असली ओनर, असली जो आपका कस्टमर है वो तो वही है ना। तो विजय का बॉस कौन है? विजय शेखर शर्मा जो पेटीएम के फाउंडर है, उनका बॉस इन्वेस्टर नहीं है, इन्वेस्टर आते रहते हैं जाते रहते हैं। वो जो यूजर है वो आपका असली बॉस है, क्योंकि अगर उस ढाबे वाले ने यूज करना पेटीएम बंद कर दिया तो वो जो आपका जापानीज इन्वेस्टर है वो भी नहीं आएगा बाद में। तो फिर आते हैं वैल्यूज पे। तो वैल्यूज आर लाइक आर्ट, तो देर इज नो राइट वैल्यू रॉन्ग वैल्यू, बट वो मैच करनी चाहिए आपके को फाउंडर के साथ। अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, एक एग्जांपल फूड स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, एक कहता है नॉन वेज बेचूंगा, एक कहता है नहीं मैं तो सिर्फ वेज बेचूंगा, एक तीसरा फाउंडर आता है वो कहता है मैं तो वीगन ही बेचूंगा तो ऑब्वियसली उनकी वही लड़ाई हो जाएगी। जबकि मतलब आई एम नॉट सेइंग आई एम अ वेजिटेरियन, बट आई एम नॉट सेइंग कि नॉन वेज खराब है, आई एम सेइंग कि न्यूट्रल वे में मैं कह रहा हूँ। बट अगर तीन अलग अलग फाउंडर तीन अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियसली लड़ाई होगी। तो एज अ फाउंडर यू हैव टू फाइंड को फाउंडर जिनकी आपसे मैचिंग बैठती हो, अब चाहे वो मैचिंग एक्स जगह बैठ रही हो वाई जगह बैठ रही हो, इट शुड नॉट बी कि अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। फिर आते हैं उल्टा, यहाँ भी उल्टा मैं शुरू करूंगा, इंटेलिजेंस पे मैं आपको थोड़ा स्पेसिफिक बताऊंगा विजय का सक्सेस का फॉर्मूला। तो गोल्स शुड मैच, योर गोल एंड ऑब्वियसली योर को फाउंडर्स गोल शुड मैच। आपने अगर गुरु फिल्म देखी हो तो गुरु फिल्म में जो गुरु होते हैं जो धीरू भाई को इम्पर्सनेट कर रहे हैं, उस फिल्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके को फाउंडर के साथ उनकी लड़ाई क्यों हो जाती है? बिकॉज उनके और दोनों के गोल मैच नहीं करते होते हैं थोड़े से, तो उनका दोनों का स्टाइल ही अलग होता है। एक और होता है ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट होता है एक, और एक 11 वाला माइंडसेट, एक होता है बड़ा वो पुराना सोशलिस्ट वाला माइंडसेट, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ग्रोथ माइंडसेट ये होता है जैसे एलोन मस्क है, वी कैन गो टू मार्स। अब वो मार्स जाके चाहे ह्यूमन बींग्स ने दुनिया बर्बाद कर दी मार्स को जाके भी बर्बाद कर देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो ग्रोथ माइंडसेट है कि ही इज नॉट सेइंग कि मार्स पे नहीं जा सकते, मतलब फॉर हिम गोइंग टू मार्स इज नॉर्मल। तो माय सन वाज सेइंग यस्टरडे एलोन मस्क मार्स पे ही जाके क्यों नहीं रहते हैं, वो सुबह से सब मार्स की बात ही करते हैं। तो वो है ग्रोथ माइंडसेट है वो। अब आते हैं इंटेलिजेंस पे। तो इंटेलिजेंस पे आने से पहले मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब मैंने एक कैनवास बनाया ना, तो आई रियलाइज किसी भी ह्यूमन बींग के बारे में पता करने का यही एक तरीका है। मतलब अगर आप ये सारे 9 खाने समझ लोगे किसी ह्यूमन बींग के, तो यू विल रियलाइज कि दैट ह्यूमन बींग इज हाउ इंपॉर्टेंट, हाउ गुड इन डे टू डे लाइफ विद यू। तो मैं अपनी वाइफ को कह रहा था, मैंने कहा अगर अगली बार शादी होगी तो ये ज़रूर देखूंगा हेड हाथ और हैंड आने वाली लड़की में क्या क्या है। एंड आई रियलाइज कि ये को फाउंडर के लिए भी यूज़ हो सकता है, इनफैक्ट मैरिज के लिए भी यूज़ हो सकता है। दैट वाज इंटरेस्टिंग लर्निंग, बट आई टोल्ड माय वाइफ, मैंने कहा अब तो कुछ चेंज हो नहीं सकता अब तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो आते हैं फाइनली इंटेलिजेंस के ऊपर। तो इंटेलिजेंस 8 तरीके की होती है। मैनी पीपल फील इंटेलिजेंस इज जस्ट आईक्यू। ये हमारे देश में एक रॉन्ग ट्रेजेडी है, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कहाँ से आ गई मिडिल क्लास में कि आईक्यू इज द मेन थिंग। आई थिंक आईआईटी जी और ये कैट वगैरह ने बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रखा है कंसेप्ट कि आईक्यू इज इंपॉर्टेंट। बट एक्चुअली अगर यू गो एंड ये आईक्यू वाली थ्योरी आई थी 100 साल पहले, इफ़ यू गो 40 ईयर्स एगो, तो एजुकेशन एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है जहाँ पर अगर आप एलोन मस्क मार्स पे जा रहे हैं एजुकेशन में, आप 1970s या 80s में भी चले जाओ तो यू आर एड ऑफ द पैक। क्योंकि हमारे यहाँ जो 100 साल पहले मारिया मोंटेसरी ने बताया वो भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जो हमारे यहाँ के स्कूल हैं वो प्रशियन सिस्टम से चलते हैं जो 150 साल पहले बना था। तो एजुकेशन 150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी पे चलती है। अगर आप 50 साल पीछे भी चल रहे हो तो आप 100 साल आगे हो नॉर्मल इंडियन स्कूल सिस्टम में। तो इंटेलिजेंस में आते हैं तो 8 तरीके की इंटेलिजेंस होती है, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इंटरेस्टिंगली मैंने देखा विजय में 8 इंटेलिजेंस हैं। ये विजय शेखर शर्मा को भी मैंने आज तक कभी नहीं बताया, पता नहीं उनको अभी भी पता है या नहीं। बट मैंने उनकी फैमिली से बात करी, मैंने जो पेटीएम में सेकंड नंबर पे थे
उनसे बात करी तो मैंने कहा देखो विजय में ये 8वां इंटेलिजेंस है, आई ऑब्जर्व दैट एंड आई सेड आई एम कोरोबरेटिंग दिस विद यू कि है या नहीं है, तो दे सेड हाँ है, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिली ने ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया, और जो पेटीएम में नंबर 2 पोजीशन पे थे, ही हैड वर्क विद हिम फॉर 5-6 years टिल देन। तो अब वो कौन कौन सी इंटेलिजेंस है, और ये आपके अंदर भी पैदा आपको करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल लाइक विजय। तो वो है लॉजिकल इंटेलिजेंस, लॉजिकली सोचना, जिससे मैथ्स वगैरह स्कूल में अगर आप थोड़े से ठीक थे, मतलब आई वुड नॉट से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बट अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में ठीक थे तो लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छी है आपकी। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, इफ यू लाइक लैंग्वेजेस वगैरह अगर आपको अच्छी लगती थी तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी है। अब ये बड़ा डिफरेंशिएशन क्लियर दिखाई देती है। मेरा बेटा है, ही डजेंट वांट टू रीड इंग्लिश एंड हिंदी, मेरी बेटी है, उसको हिंदी इंग्लिश ही बड़ी पसंद है। तो वो क्लियर ही दिखाई देता है कि हर एक आदमी का ना एक टेम्पलेट दिखाई देता है। देन देर आर 3 अदर इंटेलिजेंसेज जो ऑन्टरप्रेन्योरशिप के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो है आपकी एक है डांस की इंटेलिजेंस, जिसको हम कहते हैं काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ऋतिक रोशन बनना हो तो वो चाहिए, ऑन्टरप्रेन्योर बनने के लिए जरूरी नहीं है, ऑल्दो विजय का एक डांस का वीडियो पीछे वायरल हुआ था। विजय यूज टू हैव ऑन हिज कार्ड ऑफिशियल डीजे ऑफ द कंपनी, तो म्यूजिक की बड़ी अच्छी इंटेलिजेंस है उनके अंदर। बट अगर आपको गुलशन कुमार, भूषण कुमार बनना है तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस चाहिए। शायद नॉर्मल एंटरप्रेन्योर मुकेश अंबानी बनने के लिए शायद म्यूजिकल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। बट आप गुलशन कुमार और भूषण कुमार का एक एग्जाम्पल बड़ा क्लियर देता हूँ। आशिकी 1 जब आई थी तो उस समय भी नॉर्मल वो न्यू से एक्टर थे, और वो उस जमाने की सबसे, आई रिमेंबर, मैं छोटा ही था मैं भी, 1990 या 91 की बात है। इट वॉज दी मतलब म्यूजिक वाइज इट वॉज दी मोस्ट फेमस मूवी ऑफ इट्स टाइम म्यूजिक वाइज, जबकि एक्टर्स नए थे। आशिकी 2 आई, एक्टर्स रिलेटिवली न्यू थे, ठीक है थोड़ा बहुत नाम था उनका, बट रिलेटिवली न्यू थे। आशिकी 2 ने भी उतना ही हंगामा किया जितना आशिकी 1 ने किया था म्यूजिक में। अब ये क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है टी सीरीज के फाउंडर की और उनके बेटे की। एंड देन वी हैव स्पेशल इंटेलिजेंस, आपको माइकल शूमाकर बनना है, आपको एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बनना है, तो ऑब्वियसली स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए। अब आते हैं 3 ऐसी इंटेलिजेंस पे, दोज आर वेरी क्रिटिकल। आपको विजय शेखर शर्मा बनना है, मुकेश अंबानी बनना है, एलॉन मस्क बनना है, कुछ भी बनना है, ये 3 गोट लो अपने अंदर। मेरे अंदर अनफॉर्चुनेटली नहीं थी, अब हो गई है, तभी दोबारा एंटरप्रेन्योर बनने की इच्छा हुई। अब वन इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आई वुड से 8 में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस इज इंटरपर्सनल। 8 में आपको बाकी 7 आती हो नहीं तो दूसरे से काम करा लोगे ना अगर इंटरपर्सनल होगी तो इंटरपर्सनल बड़ी इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी टू कन्विंस पीपल टू डू वर्क अकॉर्डिंग टू योर विशेज। सेकंड, इंट्रापर्सनल, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। तो यू सी, नारायण मूर्ति इकोनॉमी में ट्रैवल करते हैं, मतलब जब मैं इकोनॉमी में कहता हूँ तो बेसिकली ये लोग इंडिगो में ट्रैवल कर रहे हैं। नारायण मूर्ति हैं, विजय शेखर शर्मा है, ये लोग इंडिगो में ट्रैवल करते हैं। अब ये अरबपति हो गए, प्राइवेट प्लेन्स में नहीं करते ट्रैवल, ये इंडिगो में ट्रैवल करते हैं, जहां आप और मैं भी करते हैं। तो व्हाट इज द रीजन, अब ये रीजन ये है कि दीज पीपल आर नॉट वर्किंग फॉर मनी। अगर वो वर्किंग फॉर मनी कर रहे होते तो वो विजय माल्या स्टाइल रह रहे होते, पर ये लोग विजय माल्या स्टाइल नहीं रह रहे। मतलब ऑब्वियसली दे आर लिविंग अ रिलेटिवली लैविश लाइफ आम आदमी के हिसाब से, बट अगर ये अपनी औकात के हिसाब से कहूँ तो मैं नॉर्मल आदमी की तरह बड़ा रिलेटिवली डाउन टू अर्थ लाइफ जी रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे आर हैविंग समथिंग मोर इन माइंड। तो विजय के केस में तो मैंने क्लियरली देखा वो पैसे के लिए काम नहीं करते, ही वर्क्स फॉर डूइंग समथिंग ग्रेट। तो वो ग्रेटनेस के लिए काम करते हैं, चाहे वो देश की ग्रेटनेस हो चाहे वो कंपनी की ग्रेटनेस हो, पर वो प्योरली पैसे के लिए काम नहीं करते। देन फाइनली नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस इज बेसिकली एन इंटेलिजेंस, उसका मतलब ये है कि हवा का रुख देख के पहचानना है कि भविष्य में क्या होने वाला है। तो जैसे मार्च में आई वॉज फॉलोइंग लॉट ऑफ पीपल ऑन ट्विटर एंड आई रियलाइज कि लॉकडाउन होने वाला है। मैंने अपने फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप्स में कह दिया लॉकडाउन होने वाला है। तो माई कजन कॉल्ड मी आफ्टर 25 मार्च, जब लॉकडाउन हुआ, ही सेड यार सौरभ तुम तो बहुत ही दूरंदेशी हो, तुमने 10 दिन पहले बता दिया था कि लॉकडाउन होने वाला है। 20 दिन से तुम कह रहे थे कोविड से बहुत कुछ होने वाला है। मुझे तो 5 मार्च को कुछ लग ही नहीं रहा था कि कोविड कुछ करेगा, और 15 मार्च को पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन हो जाएगा, ये तो उम्मीद ही नहीं थी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज ये होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। व्हाई आई स्टार्टेड मोबाइल ऐप्स इन 2002। मैंने 2002 में मोबाइल ऐप बनानी शुरू करी, जब पहला कैमरा फोन आया था। तो इमेजिन करना मुश्किल है, जब मैं मोबाइल ऐप बना रहा था कोई भी मोबाइल ऐप नहीं थी इस समय जो आप यूज करते हो। तो आप जस्ट सी, अब विजय शेखर शर्मा ने 2010 में ही सेट पेटीएम शुरू करेंगे। ही वेंट टू बोर्ड, ही सेट कुछ करोड़ रुपए चाहिए पेटीएम शुरू करने के लिए, एंड बोर्ड सेट बड़ा बेकार आइडिया है। तो अच्छे आइडिया वही होते हैं जो सबको बेकार लगते हैं। तो विजय शेखर सेट नहीं, आइडिया बड़ा अच्छा है और इम्पोर्टेंट है। बोर्ड सेट नहीं, हम कन्विंस नहीं है। तो विजय शेखर शर्मा ने अपनी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस यूज करी। उन्होंने बोर्ड को कहा कि जितने करोड़ आप
मेरे को कंपनी के अंदर दे रहे हो यूज करने के लिए, उतने करोड़ के मेरे शेयर ले लो, तो आपका तो कोई लॉस नहीं है ना, जो और इन्वेस्टर्स वगैरह हैं। और मेरे को ये काम करने दो, दिस इज द फ्यूचर। एंड बोर्ड गॉट कन्विंस कि यार अगर विजय इतना ज़्यादा रिस्क लेने को तैयार है, तो इसका मतलब ऑब्वियसली 100% ही इज हैप्पी विद दिस आइडिया, ही वांट्स टू डू दिस सीरियसली। तो बोर्ड ने ऑब्वियसली उनको फंड किया और रेस्ट इज हिस्ट्री कि पेटीएम बना। और आई स्टिल रिमेंबर 2012 में मैं उनके साथ बैठा था एक दिन, वो मुझे बोले, आई वॉज नॉट इन कंपनी एज एन एम्प्लॉय, मैं गेम बना रहा था उनके लिए अपनी स्टार्टअप से। तो ही सेड 10,000 करोड़ का ब्रांड बनेगा पेटीएम। तो मुझे लगा यार विजय बहुत बड़ा सोच रहे हैं, मुकेश भाई 10,000 करोड़ के तो होंगे। मतलब मुझे खैर 10,000 करोड़ है ना, अब सिर्फ मुकेश अंबानी याद आते थे उन दिनों। तो मेरे को लगा, मैंने कहा ये विजय कैसे बनेंगे, अभी तो 200-400 करोड़ की कंपनी है इनकी। एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज। जैसे उन्होंने कहा था कि अगले 3-4 साल में 10,000 करोड़ का ब्रांड होगा, वो 10,000 करोड़ का नहीं, वो और बड़ा ब्रांड बन गया। आज वो 1 लाख करोड़ का ब्रांड है। आज अगर 10,000 करोड़ कल को अखबार में छप जाए तो मेरे सारे शेयर जीरो हो जाएंगे जो कंपनी में मिले हुए हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जो बड़ा सोचता है, जिसके अंदर आठों इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर एम्पथी है फॉर द एंड यूजर, वो आदमी सक्सेसफुल होता है। विजय के साथ काम करके ये चीज़ देखने का मौका मिला, तो दिस इज समथिंग विच आई वांट टू शेयर विद यू। विद दैट आई थिंक वी कैन ओपन अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, बिकॉज आधा घंटा तो हो ही गया है, तो ज़्यादा टाइम बचेगा नहीं फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए। To all the participants, to all the participants, you're requested to drop in your questions in the chat box itself, so the speaker could answer those. सो नो क्वेश्चंस अभी तक। दो ही चीज होती हैं, या तो आपको बिल्कुल कुछ So we समझ। have a question in the chat box, question answer section. Harshit, are you able to see the question? I am not. I have shared the link of the posters जहाँ से मैं दिखा रहा So था। the You can follow me question on. is from Ishita Okay. Gupta. Just 1 minute. मैं एक बार एक से खत्म कर लूँ। So Sure, sir, you can sure, follow sir. me on Twitter at SK Saurabh. And I have shared list of 208 books जो मैंने पढ़ी पिछले 6 साल में। You can take the list. मतलब I am a fan of Paytm, I am a fan of Vijay. तो मैं एज अ फैन बता रहा हूँ आपको, नॉट एज अ वीपी ऑफ पेटीएम। बट सी उसमें क्या है कि जो आई कैन से गूगल पे के साथ जो प्रॉब्लम है और अमेजन पे में जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि मच ऑफ देयर डिसीजन मेकिंग हैपेंस इन सिलिकॉन वैली। तो जब मैं किसी की भी कंपनी पे कमेंट कर रहा हूँ, दिस इज माय थॉट प्रोसेस, मैं पेटीएम की कैपेसिटी में नहीं कमेंट कर रहा हूँ। सो आई एम सेइंग सैन फ्रांसिस्को में गूगल इज बेस्ड एंड अमेजन इज बेस्ड आउट ऑफ सियाटल, सो ऑब्वियसली सीनियर पीपल आर लिविंग देयर। सो अब यहाँ पेटीएम में क्या फ़र्क हो जाता है कि विजय कम्स फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन नियर अलीगढ़, तो वो वहाँ से आते हैं। तो हिंदी हार्टलैंड जो हम यूपी जिसको कहते हैं हिंदी हार्टलैंड, या एमिटी का भी नाम सबसे ज़्यादा नोएडा का ही है, तो एमिटी इज़ मोर एंट्रेंस इन यूपी। तो आप ये देखोगे तो यूपी इज़ हिंदी हार्टलैंड एंड विजय वहाँ से आते हैं। तो एक तो ये है कि विजय को इन जनरल इंडियन कस्टमर की नॉलेज ज़्यादा है रिलेटिव टू अमेजन और गूगल के सीनियर लोगों के, बिकॉज अमेजन और गूगल में जो सीनियर लोग हैं उनमें आधे लोग तो फॉरेनर ही हैं, तो उनको तो वैसे इंडिया के बारे में उतना नहीं पता। और जो इंडियंस भी हैं वो कौन है, वो सूटेड बूटेड इंडियंस हैं, इंग्लिश स्कूल में पढ़े, एंट्रेंस क्लियर किया, आईआईटी गए या हार्वर्ड गए या स्टैनफोर्ड गए, अब ये हिंदुस्तान में रहे नहीं, ये हिंदुस्तान के रिक्शा वाले से, पान वाले से, इन लोगों से कभी मिले ही नहीं। अब जो हिंदुस्तान में ज़्यादा मिला ही नहीं, उस आदमी को हिंदुस्तान के लिए प्रोडक्ट बनाने में प्रॉब्लम आती है। उसका मैं एक बहुत एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बड़ा क्लियर। क्रेडिट कार्ड लॉन्च बाय सिटी बैंक इन 1990। अब 30 साल में हिंदुस्तान में सिर्फ 5 करोड़ क्रेडिट कार्ड है और पेटीएम के 45 करोड़ यूजर हैं, जबकि क्यूआर कोड 5 साल पहले लॉन्च हुआ है। और टोटल पेटीएम ऐसा ब्रांड कुछ भी है उसके अंदर आज एक भी, जो 100 ऑफ सर्विसेज हैं उसमें से एक भी सर्विस 10 साल पहले नहीं थी। तो अगर आप 10 साल के अंदर इतने बड़े बन सकते हो और वो 30 साल के अंदर भी क्रेडिट कार्ड नहीं बनता, तो उसका रीजन क्या है? वो रीजन ये है कि पेटीएम एज अ ब्रांड रेजोनेट्स विद पीपल। उसमें जो विजय का एक्सपीरियंस है, जो टीम का एक्सपीरियंस है, आई थिंक वो एक डिफरेंशिएटर है।
दूसरा आई पर्सनली फील आज के कंटेक्स्ट में कंपेटिटिव एडवांटेज ऑब्वियसली फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें मिल रही है, बिकॉज वी वर रिलेटिवली फर्स्ट मूवर व्हेन कंपेयर टू गूगल पे एंड अमेज़न पे, तो आई थिंक वो एक फायदा हो रहा है। तो आई पर्सनली आई एम वेरी बुलिश ऑन पेटीएम। मतलब वन ऑफ द रीजंस मेरे को थोड़ा टाइम लगा पेटीएम छोड़ने में, जॉब के अंदर भी वो यही रीजन था कि आई वाज पर्सनली बुलिश ऑन पेटीएम एज अ कंपनी। तो आई पर्सनली फील कि गूगल एंड अमेजन आर हैविंग अ हार्ड टाइम। मैं एक अपना एग्जांपल दूं, अमेजन पे 50 रुपये ऑफर करता रहता है डिस्काउंट अमेजन पे से पे करने के लिए, पर मैंने तो आज तक अकाउंट ही नहीं बनाया अमेजन पे में। एंड आई फील पीपल वुड फील कि अमेजन एंड गूगल पे में अकाउंट बनाओ, पेटीएम पे भी बनाओ, तो हर एक पे अकाउंट बनाना बिकम्स अ बिग कम्बरसम आफ्टर सर्टेन पॉइंट। तो आप एक दो पे बना लेते हो अकाउंट, उसके बाद यू डोंट यूज अदर सर्विसेज। एक अलग क्वेश्चन पे आते हैं, कैन एनी मार्केटर डू डिजिटल मार्केट, व्हाट आर द स्किल्स? सो सी डिजिटल मार्केटिंग में दो चीजें आती हैं, एक है कि प्रोडक्ट बिकेगा और एक प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। तो इफ यू वांट टू लर्न अबाउट प्रोडक्ट क्यों बिकेगा, तो आप सेठ गोडिन को पढ़ो, एरिक रीज की जो लीन स्टार्टअप में मैंने आपको बताया है वो तीन चीजें, वायरल प्रोडक्ट होना चाहिए, स्टिकी प्रोडक्ट होना चाहिए और पेड इंजन ऑफ ग्रोथ है, इस टाइप की चीजें पढ़ो जो आपको स्ट्रैटेजिक आंसर्स देंगे व्हाई पीपल वुड बाय। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप जैसे वो होता है ना नदी के भाव में आप सीधा जाओगे तो यू कैन मूव वेरी फास्ट, बट आप उल्टी गंगा में जाओगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल विल बाय, और वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स एंड ऑल दोस काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स यू हैव टू लर्न। सेकंड इज की स्किल्स इज ऑब्वियसली एसईओ करना है तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के स्किल्स चाहिए, ऐप बेचनी है तो ऐप स्टोर के ऑप्टिमाइजेशन स्किल्स चाहिए। सम स्किल्स आर रिलेटिवली कॉमन सेंस। आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में एक एग्जांपल मैं देता हूँ, आई स्टार्टेड अ पिंटरेस्ट चैनल जिसपे मैंने अपनी टीम में पेटीएम में रहते हुए भी दो लोग रखे हुए थे, तो आई सेड आप ग्राफिक्स बनाते रहो और पिंटरेस्ट पे डालते रहो। कोविड में एजुकेशनल पोस्टर्स बना रहे थे, दे बिकेम वेरी फेमस। हमारे 2.7 मिलियन व्यूज हुए हैं लास्ट एक साल में, मतलब फर्स्ट अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2020 तक 2.7 मिलियन व्यूज हैं विदाउट एनी एसईओ। रीजन, हमें पता था एजुकेशनल पोस्टर्स की एक डिमांड है, हमने जो टॉपिक बनाए वो करिकुलम के थे, थोड़ी बहुत नॉर्मल कॉमन सेंस वाली इंग्लिश लिख दी थी कि इफ यू आर टीचिंग एडिशन तो ये था दिस इज अ पोस्टर विच हेल्प किड्स टू लर्न एडिशन, इस टाइप से नॉर्मल इंग्लिश लिखी हुई थी, कोई एसईओ नहीं करी। इन स्पाइट ऑफ दैट वी गॉट वेरी सक्सेसफुल। गूगल हमारे पोस्टर्स वगैरह दिखाने लगे, पिंटरेस्ट पे तो ऑब्वियसली सक्सेसफुल नहीं। तो आई वुड से डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली है कि कस्टमर क्यों मेरा प्रोडक्ट लेगा ये समझना। सेकंड ऑब्वियसली यू नीड स्किल्स, गूगल पे एसईओ करना आना चाहिए, ऐप स्टोर पे ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन करनी आनी चाहिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग है फेसबुक पे व्हाट्सएप पे, ये धीरे धीरे आ जाती है, बट ये करते करते आती है। आई वुड से स्किल्स वही है कि इफ यू कैन हैव अ स्टोरी, क्यों कोई आदमी डाउनलोड करेगा या शेयर करेगा, और उसके बाद हैव कंटेंट क्रिएशन स्किल्स। कंटेंट क्रिएशन के लिए थोड़ा बहुत फोटोशॉप आना चाहिए। तो आई हैव जस्ट रिक्रूटेड अ पर्सन जो अगले हफ्ते से मेरी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग करेगा, तो मैंने उसको कल यही कहा, मैंने कहा अपने थोड़े से फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर के स्किल्स पॉलिश कर लो, नहीं आता है तो सीख लो, बिकॉज ऐसा ना हो कि तुम बाद में कहो ग्राफिक डिजाइनर 2 दिन की छुट्टी पे, इसलिए मैं 2 दिन तक मैं भी कुछ नहीं करूंगा सोशल मीडिया पे, बिकॉज वो प्रैक्टिकल नहीं है। तो ट्राई टू हैव सर्टेन नंबर ऑफ स्किल्स। ऑब्वियसली वी विल हैव ग्राफिक डिजाइनर, दैट पर्सन वुड बी बिल्डिंग कंटेंट, बट आपको वो कंटेंट बताना है, क्या बनाना है। तो डिजिटल मार्केटिंग में यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, यू हैव टू अंडरस्टैंड टूल्स। ये तीन चीजें अगर आपको आ गई तो यू विल बिकम अ रिलेटिवली सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर, आई वुड से। हाउ टू डेवलप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कम लोग पूछते हैं, बट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मेरे लिए बड़ा रेलिवेंट है, बिकॉज आई वाज हैविंग वेरी बैड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस 4 साल पहले जब मैं पेटीएम में नहीं था। तो मैंने एक तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी कोई इंटेलिजेंस होती है हमारे देश में, हम सोचते हैं आईक्यू, तो कभी सोचते ही नहीं था। तो 2017 में इन मे आई रेड दिस बुक कॉल्ड फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस इसमें है। तो उसको रीड करने के बाद पहली बार समझ आया कि यार मेरी तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस थोड़ी ढीली है, बिकॉज आई वाज इंट्रोवर्ट, आई वाज ऑलवेज इनटू कोडिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। लोगों से बात करने में घबराहट सी होती थी, ऑल्दो आई वाज अ पब्लिक स्पीकर एट दैट टाइम ऑल्सो, एमिटी 2-3 बार आया था उससे पहले भी एज अ स्पीकर, बट वो बोलते हुए थोड़ा समझ नहीं आता था क्या बोलो ऑडियंस के आगे, वो सब भी इशू रहते थे। देन व्हाट आई रियलाइज्ड आफ्टर सीइंग विजय कि यार इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे को आज भी ध्यान है, जब मैंने पेटीएम ज्वाइन की 2017 नवंबर में, तो एक दो दिन ही हुए थे पेटीएम में, एंड उस दिन मैं 30 लोगों से मिला। तो मैं रात को आके मैंने देखा सिर में दर्द क्यों हो रहा है, तो सिर में दर्द इसलिए हो रहा था उस दिन 30 लोगों से मिला था। तो आई रियलाइज, मैंने कहा इतने लोगों से मिलना पड़ा करेगा पेटीएम में।
तो 30 तो कुछ भी नहीं थे बाद में, जब व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर पब्लिक स्पीकिंग। अब तो फिर भी ऑनलाइन है तो सब लोग दिख नहीं रहे हैं, और वो पब्लिक स्पीकिंग में तो 200 लोग आपके सामने बैठे होते हैं, तो वो 200 लोग से बात कर रहे हो। तो इंटरपर्सनल का एक ही फॉर्मूला मेरे को तो दिखाई दिया, लोगों से बात करते रहो। जितने लोगों से बात करोगे हवा निकल जाएगा लोगों से बात करने का। कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बुरा कहेंगे, जो अच्छा कहेंगे उसको पकड़ के बैठ जाओ। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर अभी मैं स्पीच दे रहा था, मुझे सिर्फ एक ही आदमी दिख रहा था, हर्षित। जब भी हर्षित स्माइल करता था तो लगता था मैं ठीक बोल रहा हूँ, जब भी हर्षित नहीं स्माइल करता था तो लगता था गलत बोल रहा हूँ। तो इंटरपर्सनल का बड़ा एक ही तरीका है, ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। क्या बोल बोल के, अगर आपको लगता है कोई चीज़ पे सामने वाला स्माइल कर रहा है तो वो ठीक है। मैनी पीपल, जब मैंने पेटीएम में एक लड़की को रखा जो फॉर कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी मैनेजर, सी सेड हम ना एक फीडबैक फॉर्म देंगे अपने इवेंट्स में, और फीडबैक में लोग देखेंगे अच्छा है बुरा है। तो मैंने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो अगली बार इवेंट में आ गया इसका मतलब पिछला इवेंट अच्छा था। अगर आपको सेम आदमी का चेहरा अगले इवेंट में दिख रहा है, तो यही सेम मैंने स्पीच में सोचा अपनी। अगर मुझे कोई कॉलेज दोबारा बुला रहा है तो इसका मतलब पिछली बार स्पीच अच्छी थी। तो दैट इज द मेन फीडबैक। तो इंटरपर्सन इंटेलिजेंस में एक तो ह्यूमन बींग्स को बहुत सीरियसली लेना बंद कर दो, एंड ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन। तो जब आप दूसरे आदमी को हेल्प करोगे तो वो आपका अपने आप हो जाएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ट्राई टू हैव दीज थिंग्स, और धीरे धीरे आप लोगों से बात करोगे। ट्राई टू बी इन कम्युनिटीज, मीटअप्स वगैरह अटेंड करो। ट्राई टू वॉलंटियर इन सर्टेन एनजीओ, तो वहाँ लोग मिलेंगे, आपकी धीरे धीरे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी। थोड़ा सा स्कूल कॉलेज में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ठीक रहती है रिलेटिवली, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई मिल रहा होता है, तो आप उतने ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते नहीं हो जब तक स्कूल कॉलेज में होते हो। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला बताता हूँ, ये इंटरपर्सनल का था, मैं आपको लॉजिकल इंटेलिजेंस का बताता हूँ। तो मैंने ये अपनी बेटी के साथ ट्राई मारा। तो मेरी बेटी में मैंने देखा, अभी 6 साल की है, तो 5 साल की थी तो आई रियलाइज लॉजिकल इंटेलिजेंस बड़ी उसकी पीछे थी। एंड मेरा बेटा इतना अच्छा था लॉजिकल इंटेलिजेंस में, वो 6 साल में प्रोग्रामिंग कर रहा था, 7-8 साल में एक दिन स्विफ्ट खुद ही सीख के खुद ही डाउनलोड करके गिटहब से कोड वोड दिखा रहा था। मैंने कहा ये पता नहीं क्या कर रहा है, 7-8 साल का था जब। तो आई रियलाइज, मैंने कहा दो तरीके हैं इसको देखने के। एक तरीका तो ये है, वो जो पुराना डिवाइड है कि लड़का है तो इंटेलिजेंस लॉजिकल ज़्यादा होगी, लड़की है तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी, एक वो जनरल डिवाइड है। बट आई रियलाइज, मैंने कहा ये नहीं होगा। तो मैंने वो नॉर्मल प्रोटोटाइप को दिमाग में लिया नहीं। आई रियलाइज, मैंने कहा मैंने बेटे के साथ मैंने क्या किया जो मैंने अपनी बेटी को नहीं दिया। तो हुआ क्या, बेटे के केस में ना मैंने स्क्रीन टाइम कभी रोका नहीं। मैंने अपने बेटे को कहा गेम खेल, बचपन से खूब मोबाइल गेम्स खेल। बेटी के केस में क्या हुआ, माय वाइफ सेड नहीं, बेटा बहुत स्क्रीन टाइम लेता है, बेटी को कम स्क्रीन टाइम देना। तो मैंने रियलाइज किया, उसको हम 15 मिनट मोबाइल फ़ोन देते थे और बेटे को 3 घंटे मोबाइल फ़ोन देते थे। तो आई रियलाइज कि बेटी को भी 7-8 गेम मैंने डाउनलोड करे। मैंने कहा तू खेल, सुपर मैरियो खेल, ये खेल वो खेल। एंड आई रियलाइज आफ्टर 3 मंथ्स 4 मंथ्स उसकी लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज वो काफ़ी लॉजिकल आपको दिखाई देता है, मैथ्स में और चीज़ों को काफ़ी लाइक करने लग गई है। तो व्हाट आई हैव रियलाइज, मोबाइल गेम से लॉजिकल इंटेलिजेंस बढ़ती है और लोगों से बात करने से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बढ़ती है। हाउ डू वी डेवलप द एबिलिटी टू कन्विंस पीपल अबाउट आवर आइडियाज? देखिए वो धीरे धीरे भुक्तभोगी होके ही आता है। तो व्हाट आई रियलाइज, मैं जब स्पीच देने लगा तो लोगों को आई होप ठीक लगती है, तभी बुला रहे हैं। तो व्हाट आई रियलाइज कि ये एबिलिटी कहाँ से आई। मैंने भी रिकलेक्ट किया, कहीं पब्लिक स्पीकिंग करी तो थी नहीं। तो व्हाट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग वो, जब मैंने अपनी पुरानी स्टार्टअप स्टार्ट करी थी, तो उन दिनों मैं भी आपकी वाली, मतलब 2002 में जब मैंने 3 में स्टार्टअप स्टार्ट करी, तो मैं आपकी वाली पोजीशन में था। आई हैड वेरी फ्यू अमाउंट, मतलब मैं 3,000 रुपये महीना में एक इंजीनियर, वो GNIIT का एक लड़का बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाया था कि 3,000 का मेरा बजट था महीने का देने का। वो 3,000 रुपये में तैयार था मेरी स्टार्टअप ज्वाइन करने को। तो अब क्या था कि वो ले लिया। अब उसके बाद जब दूसरा लड़के को करना था तो अब उसको कन्विंस किया। तो एक लड़के को हमने रखा, उसको कहा तू प्रोग्रामिंग भी कर ले, क्योंकि तू वो इंजीनियरिंग करके एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा था, क्योंकि बिहार से आया हुआ था, अपना खर्चा निकालना था। तो हमने कहा तेरे को रखा तो क्लरिकल काम के लिए था, बट तू क्योंकि इंजीनियर है मैं तेरे को थोड़ी सी प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ। मेरे को जोश में ये था, मैंने कहा ये 2,500 रुपये महीना ले रहा है तो 2,500 में इंजीनियर मिल जाएगा अगर इसको प्रोग्रामिंग सिखाई तो ये लालच था। 2003-4 की बात बता रहा हूँ। तो हाउ टू डेवलप एबिलिटीज टू कन्विंस पीपल आपको आ जाएगी जब आपको कुछ कराना होगा सामने वाले से। आप कृष्ण जी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, कृष्ण जी से इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और कन्विंसिंग पावर बहुत बढ़ती है। तो व्हाट आई रियलाइज, इफ यू ट्राई टू डू दिस थिंग्स तो धीरे धीरे आ जाती है कन्विंसिंग पावर। तो वो जो कन्विक्शन धीरे धीरे मेरे को आने लगी, वो कन्विक्शन बाद में ऑब्वियसली काम आई आगे आगे, और वो हर जगह काम आती है। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हाउ यू विल कन्विंस पीपल इन यूर स्मॉल बजट टू वर्क, वही बाद में आपको डिसाइड करेगा सक्सेस आपकी।
What risks and sacrifices does a startup enterprise demand? देखिए बहुत रिस्क चाहिए. रिस्क इन दैट सेंस है कि अब व्हेन आई लेफ्ट पेटीएम तो ऑब्वियसली एक जॉब छोड़ रहा था, एक सिक्योर जॉब थी वो छोड़ रहा था. मेरे केस में तो खैर बहुत ही ज़्यादा रिस्क इसलिए था क्योंकि आपको पेटीएम में मेरे को नॉलेज भी मिल रही थी, मेरे को पेटीएम में लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिल रहा था, शक्ति का भी आशीर्वाद मिल रहा था, बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट कई बार मिलने के लिए बुलाते थे. तो वो सब छोड़ के मैंने स्टार्टअप ज्वाइन करी, एक अपनी स्टार्टअप खोली. तो उसका रीज़न ये था कि मेरे को सबका आशीर्वाद मिल रहा था, गणेश का आशीर्वाद नहीं मिल रहा था. गणेश का आशीर्वाद का जब मैं कहता हूँ मतलब ये था कि मेरे अंदर एक खुशी जो थी ना, इंट्रिंसिक खुशी कम हो गई थी, एक्सट्रिंसिक खुशी बहुत थी. मतलब आई रियलाइज कि बहुत नाम है, बहुत पैसे हैं, सब कुछ है, बट व्हाट आई रियलाइज अंदर से जो मैं काम करना चाह रहा हूँ उसमें मज़ा नहीं आ रहा था. तो वो वाली चीज़ आई वुड से, आप स्टार्टअप में ऑब्वियसली पैसे लगते हैं, आपके अपने पैसे भी लगते हैं, आप जॉब भी छोड़ते हो तो डबल नुकसान होता है. आई स्टिल रिमेंबर माई वाइफ यूज टू से, मेरा एक दोस्त है वो वीपी है HDFC बैंक का, एंड ही वॉज AVP असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ HDFC बैंक बिफोर आई ज्वाइन पेटीएम. तो शी यूज टू से, देखो सोशल मीडिया पे हर रोज ये कहता है मैं इस रिजॉर्ट में गया हूँ, यहाँ गया हूँ, वहाँ गया हूँ, और तुम 12 घंटे काम भी करते हो, पैसे भी इससे कम कमाते हो, स्टार्टअप कब चलेगी वो पता नहीं. तो ये एक रिस्क होता है. तो वो देखिए रिस्क रहते हैं, बट वाई यू डू, बिकॉज वो गणेश का आशीर्वाद चाहिए. जॉब में गणेश वाला आशीर्वाद नहीं मिल सकता. जो जितनी खुशी फेल स्टार्टअप चलाने में होती है उतनी खुशी सक्सेसफुल जॉब में नहीं होती. और ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ. पिछला एक महीना 1 मार्च आई स्टार्टेड माई स्टार्टअप. 1 मार्च से 31 मार्च वॉज नॉट ईजी, बट बहुत मज़ा आया पिछले एक महीने में. उसकी जगह कई बार मैं कंपनी में सक्सेसफुल था. कोविड के अंदर एक एग्जांपल बताता हूँ, पैसे भी आ रहे थे. एक महीना अप्रैल 2020 में ज़्यादा काम भी नहीं किया, उसके बावजूद भी आई वॉज नॉट दैट हैप्पी जितना मैं पिछले महीने हैप्पी था. तो वो स्टार्टअप में रिस्क होगा, सैक्रिफाइस होगा, बट एक जोश का अपना मज़ा होता है. हाँ रिस्क पैसे का है, पहले से कम रिस्क है, बिकॉज व्हाट आई रियलाइज्ड आज से 15-20 साल पहले जब मैंने अपनी स्टार्टअप्स खोली, पहली स्टार्टअप दूसरी स्टार्टअप 10 साल पहले खोली, तो मैंने देखा देयर वाज अ रिस्क. अभी भी है रिस्क, बट वर्स्ट केस में क्या होगा, स्टार्टअप फेल हो जाएगी, तब जॉब लोगे. जब जॉब लेने जाओगे तो जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं विजय जैसे, वो फेल स्टार्टअप के एंटरप्रेन्योर्स को बड़ी वैल्यू देते हैं. तो हो सकता है आप एक जूनियर पोस्ट पे जाओगे तो कोई आपको रखेगा नहीं कि यार तूने तो स्टार्टअप चलाई, क्या बेकार थी. कई आई नो सम जूनियर्स जो 3 महीने 6 महीने अपनी स्टार्टअप को ना ढक लेते हैं कि हम इस वजह से नहीं कर पाए, उस वजह से नहीं कर पाए, बिकॉज वो स्टार्टअप सुनना नहीं चाहता HR. तो वो बेकार कंपनियां होती है जिनके HR ये आपको नेगेटिव मार्किंग देते हैं कि आपने स्टार्टअप लॉन्च करी. जो अच्छी स्टार्टअप्स होती हैं दे गिव यू हायर मार्क्स. मतलब अगर आप IIT से हो और उसकी जगह आप कहो मैंने 2 साल फेल्ड स्टार्टअप चलाई है, तो हो सकता है IIT वाले को ना रखें और फेल्ड स्टार्टअप वाले को रख लें. ऐसी होती हैं स्टार्टअप्स. तो वो रहता है. तो इसलिए रिस्क उतना नहीं है, सैक्रिफाइस 12 घंटे काम करना पड़ता है. अब मैं सुबह से सोचना तो शुरू कर ही देता हूँ, काम जरूर थोड़ा बहुत आजकल हल्का सा लेट शुरू करता हूँ, बट रात के 11, 11:30, 12, कई बार 2 भी बज जाते हैं, काम करते रहते हैं स्टार्टअप के लिए. तो स्टार्टअप का मतलब तो वही है. कॉर्पोरेट जॉब में ज़रूर होता है कि आप पहले 9 to 5 होता था, और 9 to 5 अब वहाँ भी नहीं होता है, बिकॉज रिमोट वर्किंग में वहाँ भी 9 to 5 नहीं रह गया. बट हाँ स्टार्टअप में सेक्रीफाइस काफ़ी करनी पड़ती है, फैमिली लाइफ. तो अब आते हैं क्वेश्चन पे. पेपैल is owned by Elon Musk. नहीं, PayPal was owned by Elon Musk, but now it is not owned by Elon Musk. I have heard Paytm use PayPal color scheme. How does Vijay handle it? देखिए कलर स्कीम तो कॉमन हो ही सकती है. अब मेरा ये मानना है कि अब आपने कलर स्कीम अगर गलती से सेम ले ली तो अब उसको में कोई कलर स्कीम, नोबडी ओन्स कलर. रेड कलर अब माइक्रोसॉफ्ट का ब्लू कलर है, मेरे को ब्लू कलर बड़ा पसंद है, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं माइक्रोसॉफ्ट कलर रोज पहनता हूँ. आई एम वेरी, मैं रोज ब्लू कलर का टी शर्ट पहनता हूँ. समझ लो जनरली आपको अभी भी टी शर्ट लगेगी ब्लू कलर की, तो मैं माइक्रोसॉफ्ट कलर थोड़ी ना पहन रहा हूँ. तो नोबडी ओन्स कलर, स्पेशली अगर आप रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज रेड ये सब जो रेनबो वाले कलर हैं वो ले रहे हो तो कोई भी ओन नहीं करता. मतलब तो आई थिंक वो बेकार का एक स्वीट फाइल किया था पेपैल ने पेटीएम के अगेंस्ट. आई डोंट नो उसका क्या स्टेटस है लीगली, बट व्हाट आई नो इज कि बहुत ही बेकार केस है. मतलब कोई सिर नहीं पैर नहीं है. पेपैल वाज नॉट देयर इन इंडिया जब पेटीएम शुरू हुई. पेपैल आज भी प्रैक्टिकली कौन यूज़ करता है डे टू डे लेवल पे. अमेरिका भी जाओगे तो लोग स्क्वायर यूज़ करते हैं डे टू डे पेमेंट्स के लिए. पेपैल इज यूज इन स्पेसिफिक ऑनलाइन डिजिटल सिचुएशंस. पेटीएम ब्रॉडली ऑफलाइन सिचुएशंस में ज़्यादा यूज़ होता है. तो वो तो वैसे ही आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है पेटीएम पेपैल का. आई थिंक वो बहुत ही फ्रिवलस सूट है मेरे हिसाब से. एंड ये आई थिंक कई बार यही लिखा हुआ है. एक और क्वेश्चन है. इफ आई वाज टू स्टार्ट अ बिजनेस टुडे विच इंडस्ट्री अकॉर्डिंग टू यू वुड बी मोस्ट लुक्रेटिव? देखिए नो इंडस्ट्री इज वेरी लुक्रेटिव. इट डिपेंड्स ऑन आपको कौन सी प्रॉब्लम अच्छी लगती है.
सारी प्रॉब्लम्स अच्छी हैं और सारी प्रॉब्लम्स खराब हैं, इट डिपेंड्स ऑन योर ओन इंटरेस्ट. जस्ट सी यूनाइटेड नेशंस हैज 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. वो जो 17 के 17 गोल हैं वो सब पे एक बड़ा बिजनेस बन सकता है. व्हाट आर दो 17 गोल्स? तो एक गोल है एजुकेशन. तो एजुकेशन ऑब्वियसली बहुत बिग इंडस्ट्री बन सकती है. अब ये जो बैजूस के आने से पहले वी यूज टू फील एजुकेशन इज अ स्मॉल इंडस्ट्री, रिलेटिवली बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रुप नहीं था कोई एजुकेशन में, बट बैजूस आने के बाद अब ये 12-13 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन इन्होंने पैदा कर ली. और तो इसी तरीके से क्लीन टेक इज वन ऑफ दी, उसके अंदर है कि क्लीन टेक्नोलॉजी. आज आज पॉल्यूशन से हम कितना परेशान है. अब मैं एक एग्जांपल अपना ही बताऊं तो मैंने कम से कम 50,000 रुपये घर में लगा रखे हैं सिर्फ एयर प्यूरीफायर्स में. तो आप खुद ही देखो, हमने एयर प्यूरीफायर खरीद रखे हैं, हमने आरओ सिस्टम खरीद रखे हैं घरों में. हम एसी में भी एक वन ऑफ द रीजंस फॉर यूजिंग एसी समटाइम्स वो भी होता है कि धुआं हो जाता है दिवाली पे. तो कई बार आप एसी इसलिए भी चलाते हो, ठंड लग रही होती है फिर भी आप एसी चलाते हो कि चल धुआं थोड़ा कम हो जाएगा. तो आई वुड से क्लीन टेक्नोलॉजी इज वन अनदर सॉल्यूशन. फूड टेक, आज आज पेस्टिसाइड वाला फूड है, अगर आप किसी तरीके से सस्ता ऑर्गेनिक फूड दे सकते हो, आप किचन गार्डन ऐसा बना सकते हो कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं अगला घर जो भी बनाऊं उसके अंदर एटलीस्ट किचन गार्डन इतना बड़ा होना चाहिए. आफ्टर कोविड एंड पूरा का पूरा लॉकडाउन के बाद आई रियलाइज कि कल को कुछ भी हो सकता है 21वीं सदी में. यू हैड September 11, यू हैड कोविड, यहाँ कुछ भी हो सकता है. तो कम से कम एक महीने ऐसा होना चाहिए कि अपने किचन गार्डन से खाना खा सको, कम से कम सब्जियां तो खा सको. क्योंकि यू कैन स्टोर गेहूं, यू कैन स्टोर चावल, बट यू कैन नॉट स्टोर सब्जी. तो एक महीने आपके किचन गार्डन से अगर आपकी गाड़ी चल सकती है तो वो होना चाहिए. तो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग फूड की प्रॉब्लम है कि अगर आप टेरेस गार्डन पे एक महीने की किचन के लिए सामान उगा सकते हो, वो एक बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. तो काफ़ी चीज़ें हैं. तो आई वुड नॉट से एनी इंडस्ट्री कैन बिकम बिग. विजय को जब आइडिया आया पेटीएम का, उन्होंने बोर्ड को बताया, उन्होंने अपने कई और लोगों को बताया, तो सबको ही बेकार आइडिया लगता था. सबके लिए ये गूगल में अगर इनोवेशन होती तो 2010 में पेटीएम की गूगल पे शुरू करते. गूगल स्टार्टेड गूगल पे कब किया? पेटीएम लॉन्च हो चुका था उसके बाद किया. और इंडिया में कब लॉन्च किया? जब प्रैक्टिकली स्पीकिंग पेटीएम, मोबीक्विक ये सब थे. तो ये कितनी भी कंपनी है, ये आप जब बड़े हो गए तभी आपके कंपटीटर बनेंगे. और अगर पहले से ही कोई बड़ी कंपनी है जैसे आज अमेजन है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट दैट कंपनी. तो अमेजन ऑब्वियसली ई कॉमर्स इज अ वेरी बिग मार्केट, बट अमेजन और मुकेश अंबानी आपस में लड़ रहे हो तो फिर आप छोटी सी कंपनी जाके क्या करोगे वहां पर? मतलब दो बड़े बड़े हाथी लड़ रहे हो और आप बीच में चले जाओगे तो पिस जाओगे. तो आई वुड से एक ऐसे इसके लिए पीटर थिल का आइडिया बड़ा अच्छा लगता है मेरे को. तो देर इज अ बुक कॉल 0 to 1. पीटर थिल बहुत फेमस एलॉन मस्क के पार्टनर थे पेपैल के अंदर. एंड पीटर थिल इन्वेस्टेड इन फेसबुक एक्सेट्रा, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं. तो पीटर थिल सेज एक ऐसे पॉन्ड में जाओ, एक स्टार्टअप शुड बी इन अ मार्केट विच इज वेरी स्मॉल. तो एक पॉन्ड ऐसा हो जो बाद में बड़ा होकर समुंदर बन जाए. तो स्टार्ट विद अ पॉन्ड जिसके अंदर आप जाके राजा बन गए. तो जैसे वो कहते हैं ना, तालाब का मेंढक कुछ नहीं होता, बट स्टार्टअप में उल्टा है. ऐसे तालाब के मेंढक बन जाओ जहां पर वो मेंढक बड़ा था, और जैसे जैसे तालाब का साइज बढ़ेगा, जूम होएगा तालाब, स्केल अप होगा, वैसे वैसे मेंढक का साइज भी बढ़ता जाएगा. और जब आप समुद्र में जाओगे तो आपका साइज बहुत बड़ा होगा. तो अब पीटर थिल की 0 to 1 की टोटल समरी है इस बुक की. तो ट्राई टू फाइंड दैट काइंड ऑफ अ तालाब. तो अब वो ढूंढना आसान काम नहीं है. मुझे कई साल लगे तब जाके ट्रांसमीडिया एजुकेशन जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ वो मिला मेरे को. अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है, ट्रांसमीडिया एजुकेशन 4 साल से लोगों को मैं बता रहा हूँ, किसी ने कॉपी नहीं किया. तब इनोवेटर का टैग मुझे ही मिला. सबसे पहली मीडिया कवरेज ट्रांसमीडिया एजुकेशन की हमें ही मिली, जबकि मैं 2017 से लोगों को बता रहा हूँ. मैं तो जॉब करने चला ही गया था. तो आई वॉज नॉट थिंकिंग कि मैं कभी ट्रांसमीडिया एजुकेशन की कंपनी भी खोलूंगा. तो अच्छे आइडिया सबको घटिया लगते हैं, इसलिए कोई कॉपी नहीं करता, ये ध्यान रखना. तो ट्राई टू डू थिंग विच यू लव, एंड वंस यू स्टार्ट लविंग तो वो आइडिया धीरे धीरे बड़ा हो जाता है. अगर आपके अंदर दम है और ऑब्वियसली आइडिया में दम है तो वो चीज़ धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी. तो आई थिंक वी हैव एग्जॉस्टेड ऑल क्वेश्चंस. ओके, कोई और क्वेश्चन नहीं है? एनी अदर क्वेश्चंस? So could you please tell us more about that transmedia हाँ, तो education? ट्रांसमीडिया एजुकेशन इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट. मतलब कई बार बड़ा कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट लगता है, बट एजुकेशन इंडस्ट्री में जाके वो ऐसा लगता है कि वो पता नहीं कितना हाई फाई कंसेप्ट है. वो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है. वो ये है कि बच्चा पूरे दिन डोरेमोन देखता है और मोबाइल गेम खेलता है. और अगर आप बच्चे को वही गेम और कार्टून फिल्म के थ्रू पढ़ा देते हो, स्कूल ना जाना पड़े, मैं नर्सरी की सारी पढ़ाई डोरेमोन देख के हो जाए, फर्स्ट की सारी पढ़ाई सुपर मैरियो या जेटपैक जॉय राइड इस टाइप के जो मोबाइल गेम्स हैं, सबवे सर्फर, इनको खेल हो जाए. अगर ये चीज़ हो जाए
अच्छा हो, माँ बाप दुखी रहते हैं कि बच्चा डोरेमोन देख रहा है या बच्चा कार्टून फिल्म देख रहा है, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब दिस इज अ वेरी कॉमन सेंसिकल आइडिया एज अ पेरेंट। अब जब आप एजुकेशन इंडस्ट्री से जाते हो और आप सामने कहते हो कि ना स्कूल चाहिए, ना टीचर चाहिए, ना कोई और चाहिए, और आप जाके सिर्फ एक मोबाइल गेम से या एक एनिमेशन फिल्म से या एक कॉमिक से पढ़ाई करा दोगे, तो वो थोड़ा सुन के अजीब सा लगता है। बट दैट इज द होल आइडिया कि एंटरटेनमेंट के अंदर आप एजुकेशन करा दोगे। ट्रांस मीडिया का मतलब होता है कि यू कैन एंटर अ मीडिया प्रॉपर्टी थ्रू वेरियस मीडियाज। तो रामायण इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांस मीडिया इन इंडिया। रामलीला जाओगे तब भी रामायण में घुस रहे हो, रामानंद सागर का सीरियल देखोगे तब भी रामायण में घुस रहे हो, आप राम मंदिर जाओगे तब भी रामायण में घुस रहे हो, या रामचरितमानस जो ओरिजिनल है वो आप पढ़ोगे तब भी रामायण में घुस रहे हो, और राम जी के ऊपर बहुत सारी और बुक्स लिखी गई हैं, कोई भी बुक पढ़ोगे तब भी रामायण में घुस रहे हो। Correct, sir. डिज्नी के अंदर डिज्नी लैंड है, डिज्नी के अंदर यू कैन गो टू डिज्नी लैंड, यू कैन हैव डिज्नी मर्चेंडाइज, यू कैन सी डिज्नी चैनल, यू कैन सी डिज्नी कार्टून, पिक्सार की कार्टून। तो ये एक ट्रांस मीडिया है कि एक ही स्टोरी वर्ल्ड में आप कई तरीके से घुस सकते हो, तो दैट इज ट्रांस मीडिया। एजुकेशन इसलिए क्योंकि उस तरीके से आप पढ़ाना चाह रहे हो जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। मैंने एक ट्रांस मीडिया एजुकेशन पे लिखा था ब्लॉग पोस्ट 2017 में, वो आज तक नंबर 3 पे आ रहा है गूगल पे। तो इसका मतलब ये किसी और ने कुछ लिखा ही नहीं पिछले 4 साल 5 साल में। तो आई फील दिस इज अ न्यू थिंग। आई पर्सनली फील बच्चों को आज़ाद कराना है। मैं अपने आप को फ्रीडम फाइटर की तरह दिखता हूँ कि वो बेचारे बच्चे बंधक बने हुए हैं स्कूल के और करिकुलम के, उनको आज़ाद करा के अगर आपने उनको फ्रीडम दे दी कि बच्चों एंटरटेन हो और साथ में पढ़ते भी रहो। तो आई पर्सनली थिंक, मैंने काफ़ी रिसर्च करी है एजुकेशनली, फिजिकली जा जाके स्कूल्स में, गांव वगैरह में, और उसके अलावा काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं। मैं अमेरिका वगैरह भी गया इस चीज़ पे रिसर्च करने। तो आफ्टर गोइंग थ्रू एवरीथिंग आई एम 100% कन्विंस कि फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इज नॉट जो बैजूस करता है, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन वो है जो हम कर रहे हैं, एटलीस्ट इन प्राइमरी स्कूल। मतलब सेकेंडरी में इट विल बी मिक्स, हायर एजुकेशन में वो बैजू वाला सिस्टम चल सकता है, जूम पे पढ़ाते रहो, क्योंकि जो जूनियर बच्चा है Understood. उसको आप जूम पे पढ़ा के काम नहीं चला सकते। Yes, sir, understood. Sir, thank you so much for answering these questions so knowledgeably. So before the vote of thanks, I would like to uh, highlight the key takeaways from the session. So today, through the session, we got to know what an entrepreneur and what a startup is, what we need to worry about as in people, product, place. Further on, we got to know about the stages of startup and to know if our product is market fit or not, or if it is feasible or not. We also got to know the essential values to become a good founder. That was all about, we had the key takeaways from the session. And as John F. Kennedy famously said, we must find time to stop and thank the people who make a difference in our lives. So with this spirit, I, Harshit Kapoor, on behalf of the complete team of Impresario, Entrepreneurship Cell of Family School of Business, would like to express my sincere gratitude to everyone present here for gracing this event with this benign presence. With great sense of admiration, I would like to thank our respected guest speaker, Mr. Saurabh Jain, founder of Fun2Do Labs, for taking out his valuable time and enlightening us with his profound knowledge. Your gracious presence and delightful thoughts have surely helped us to broaden up our thinking horizon and provided a learning experience to all of us present here. Further, I'd like to thank our Honorable Founder President Dr. Ashok Chauhan sir, Honorable Chancellor Dr. Atul Chauhan sir, Honorable Vice Chancellor Professor Dr. Balwinder Shukla ma'am, our respected Director Professor Dr. J.K. Sharma sir, and our faculty coordinators Dr. Nidhi Gupta ma'am and Dr. Jayashree Sapra ma'am for creating such great learning opportunities. Lastly, I would like to express my heartfelt gratitude to all the faculty and students for being a part of this extremely knowledgeable and memorable session. With this, we come to the end of another enlightening session by Amity School of Business.